ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हार्डी-सुलजे रूल कोगुलेशन के इन सारे प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। सो हार्डी-सुलजे रूल इज रिलेटेड with the coagulation of colloidal solution by addition of electrolyte, इस टॉपिक से रिलेटेड है। So Hardy-Sulze rule is having two postulate, first postulate, second postulate, ठीक है। फर्स्ट postulate is there, always opposite charge ion of electrolyte is responsible for coagulation of any colloidal solution. Yesterday I discussed कि whenever we are adding the electrolyte like NaCl we are going to add, and colloidal solution is having any one charge, either positive CS or negative CS. If positive CS is there, then negative ion will be responsible for coagulation. If negative CS, then positive ion will be responsible. Means always opposite charge ion of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट पे जो चार्ज है दैट विल बी अपोजिट आयन। मतलब ये कहने का है कि NaCl होल NaCl इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जैसे हम कह दिए कि NaCl इज एडेड देन इट विल बी कोगुलेटेड, तो आपको लगा कि NaCl रिस्पॉन्सिबल है। सो होल NaCl इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, only one ion, either cation or anion is responsible for coagulation. First, second thing, फिर देखा गया कि if the same type of, why director man is calling, okay, now see, according to, ठीक है, according to Hardy-Sulze rule, second one, ठीक है, it has been observed that if same type of ions are there, same type of ions means only cations or only anions. Yesterday I had discussed something. Wait a minute. हेलो, हाँ जैन सर। सर क्लास ले रहे हैं 12th A का केमिस्ट्री, राम सिंह सर को मालूम है, जैसे ही खत्म होता है हम आ जाते हैं। हेलो, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। सो लिसन, आई नो कि थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, बट सॉरी फॉर दैट। रिमेंबर, if same type of ion, I am saying same type of ion, that is only positive or only negative. If same type of ion is there, like Cl minus, SO4 2 minus, or PO4 3 minus, if same type of ion is there, scientists have started the next observation कि if same type of ion is there, then they are taking the same time for coagulation, or there is something different on changing their charge. तो उनको पता चला कि नहीं, type is same, but if charge are different, then अगर चार्ज अलग अलग है, then that will be the better coagulating agent, that will have the greater coagulation power, which will have maximum charge. That is not only for negative, that is not only for positive. And remember this point, इस point पे from last 5 years I have seen 6-7 questions.
प्रीवियस ईयर आई हैव सीन 3 क्वेश्चन, जैसे मैंने कल पूछा था, लाइक वन क्वेश्चन इज देयर, ठीक है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन की मे बी निगेटिव सीएस कोई ले लेते हैं, लाइक ईओसिन, क्वेश्चन इज देयर दैट ईओसिन इज निगेटिव सीएस, ऐसे लिखा रहेगा, ईओसिन इज निगेटिव सीएस, ये आपको बता देगा कि इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, एंड 4 ऑप्शंस विल बी देयर, 1 2 3 4, and out of that 4, one is NaCl, second is BaCl2, third one is AlCl3, ठीक है, maybe 3 is there. Then question will ask which one electrolyte is coagulate the CS fastly, or which one electrolyte have highest coagulation power, चाहे coagulation power पूछे, चाहे पूछे कि कौन सबसे फास्टर कोगुलेट करेगा, which one is coagulate this CS faster. Remember, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि which charge is present on CS, CS पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पहले आपको ये देखना है, एंड चेक इट्स अपोजिट आयन, इसका अपोजिट आयन देखिए, तो CS इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो यू विल चेक द पॉजिटिव, Na प्लस Ba हैविंग 2 प्लस, इट इज 100% श्योर। एक चीज आप ध्यान दे दीजिएगा कि जो भी CS पे चार्ज होगा उसके अपोजिट आयन पे चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होगा, और उसका अपोजिट वाला आयन ही डिफरेंट होगा, लाइक निगेटिव CS है तो सारे में Cl है, Cl इज हैविंग 1 चार्ज, सारे Cl पे एक ही चार्ज होगा, एंड Al इज हैविंग 3 प्लस, सो 1 2 3, which one is the best coagulating agent which will have the highest charge, तो किसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर, सो AlCl3 विल बी द कोगुलेट CS फास्टर, AlCl3 CS को सबसे फास्ट कोगुलेट करेगा, ठीक है, रिमेंबर दिस, यही क्वेश्चन जो सेकेंड पॉइंट है, दैट सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा कि विच वन विल बी कोगुलेट फास्टर और विच वन विल बी द बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट, इसमें से जो भी आपको वर्ड मिलेगा तुरंत इमीडिएटली थिंक अबाउट द हार्डी-सुल्जे रूल, सेकेंड पॉइंट सेम इज हियर गिवन इन निगेटिव, कि अगर पॉजिटिव CS है, बस ये याद रखिएगा कि निगेटिव विल बी यूज फॉर पॉजिटिव सॉल्व एंड पॉजिटिव विल बी यूज फॉर निगेटिव सॉल्व, पॉजिटिव विल बी यूज फॉर निगेटिव सॉल्व। वेट अ मिनट, हेलो, हाँ हाँ, हेलो हेलो कौन, हाँ हेलो कौन, हाँ सुधांशु, क्या हुआ, अभी नहीं मिला क्या? नहीं अभी कुछ पता नहीं चला, अभी तुम क्लास ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस कि निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है तो आपको पॉजिटिव वाला चेक करना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला ना। आफ्टर दिस वन देखिए, 2 टर्म है, वन टर्म इज हियर कोगुलेशन पावर, ये याद रखिएगा, एक होता है कोगुलेशन पावर या फ्लोक्यूलेशन पावर, तो कोगुलेशन पावर का मतलब हो गया कौन कितनी जल्दी कोगुलेट करा रहा है, इट इज रिलेटेड टू टाइम, एंड that which will have highest charge that will be coagulate first, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज होगा वही कोगुलेट फर्स्ट कराएगा, एंड नाउ सेकंड इज कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू का मतलब होता है कितना अमाउंट यूज होगा, कितना अमाउंट यूज होगा, कोगुलेशन वैल्यू इज रिलेटेड विद द अमाउंट, आप क्या करते थे? हेलो, अरे भाई, हेलो,
कोगुलेशन वैल्यू इज रिलेटेड विथ अमाउंट, कि कितना अमाउंट यूज होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का। रिमेंबर दिस, कोगुलेशन वैल्यू इज रिलेटेड विथ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कोगुलेशन पावर इज रिलेटेड विथ चार्ज ऑफ आयन। ये दो अलग अलग अरे चीजें तुमको हैं। सब आते ही नहीं हो। हेलो हेलो, हु इज देयर? कैन एनीवन इन्फॉर्म मी हु इज देयर? Sir, Satyam was speaking, sir. What happened, Satyam? Satyam, can you hear me? Sir, I he did. was talking on phone, I think. Sir, actually, I was talking to Shivans. He was saying that he cannot join, sir, Why? because, sir, there is some error in his device, sir. Okay, then tell him ki please see the video. Video link is present in chat box. Okay, sir. Okay. Okay, and don't say like this in your when mic will be on. Okay, Satyam, because this will be recorded in your this video also, whatever voice was there. So Yes, please sir. be careful. Whenever anyone will see this video, maybe principal sir or anyone will see, then your voice will come here. Whatever I am doing also, that will come कि हम बार बार आपका फोन रोक रहे हैं, that will also come. So please be careful for that. No matter, just tell him कि it's okay, he will see the video. Maybe try, maybe after some time he will join. So now once again, please remember this: coagulation power and coagulation value are two different things. कोगुलेशन पावर कोगुलेशन वैल्यू में क्या रिलेशन है, देन इसको भी याद रखिए। कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। अब हम आपको इसको एक छोटे सिंपल से डेली लाइफ एक्टिविटी से ऐड करते हैं। आपने फेविक्विक जानते हैं, एंड जो आपको ये ग्लू मिलता है, नॉर्मल ग्लू जो पेज वाला चिपकाने के लिए होता है, तो आप इन दोनों में देखिए, फेविक्विक को आपको बहुत थोड़ा सा लगाना होगा और चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ग्लू को आप बहुत ज्यादा लगाएंगे फिर भी चीजें ऐड नहीं होंगी, उसको बहुत देर तक आपको क्या करना होगा, रखना होगा। फेविक्विक लगाने पे तुरंत वो चिपक जाता है आफ्टर फ्यू सेकेंड और विद इन अ मिनट, और ग्लू लगाने पे आपको 1 घंटे 2 घंटे छोड़ना होता है, वो ड्राई होता है, देन वो चिपकता है। तो सेम इज हियर, द क्विक इन टाइम दैट इज पावर, मोर इन अमाउंट दैट इज वैल्यू। ठीक है, तो कोगुलेशन पावर कोगुलेशन वैल्यू में हर साल स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कोगुलेशन पावर आपको चेक करना है तो डायरेक्ट चेक विथ चार्ज, दैट विच विल हैव द मोर चार्ज दैट विल हैव द मोर कोगुलेशन पावर, और इसका अपोजिट है कोगुलेशन वैल्यू, जिसकी कोगुलेशन वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, कोगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जिसपे चार्ज कम होगा। लाइक सी हियर, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर, ये तो लिखने की बात है, ठीक है, कंसंट्रेशन आपने कह दिया तो वो लीटर में हो गया। रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सॉल इन 2 आवर्स, इसमें 2 घंटे फिक्स कर दिया कि 2 घंटे में, फिक्स है टाइम, 2 घंटे में कोगुलेट करने के लिए कितना अमाउंट 1 लीटर में ऐड करना पड़ेगा। जिसका 1 लीटर में ज्यादा ऐड करना पड़ेगा उसकी कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसका कम ऐड करना पड़ेगा उसकी कोगुलेशन वैल्यू कम होगी। सी द लास्ट पॉइंट, स्मॉलर द क्वांटिटी हायर द कोगुलेशन पावर। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा चार्ज इसका है, तो इसका हो सकता है कि 1 लीटर में, ठीक है, इसका 1 लीटर में हो सकता है कि 5 ग्राम ऐड करना, लेकिन वहीं सीएल जाएंगे तो इस पे चार्ज 1/4 है, मतलब 1 है केवल, इस पे 4 है, इस पे 1/4 उसका हो गया। सो इसको को सेम अमाउंट कोगुलेट कराने के लिए 20 ग्राम चाहिए। तो जिसपे देखिए, कोगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज,
and coagulation value is inversely proportional to charge. जिस पे चार्ज ज्यादा उसकी कोगुलेशन वैल्यू कम, जिस पे चार्ज कम उसकी कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा. So please note down this information. After writing the coagulation value, you need to write this relation कि कोगुलेशन वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. मतलब आपको सॉरी कोगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि विच विल हैव द हायर कोगुलेशन पावर तो आप उसमें चार्ज देखेंगे, जिसका ज्यादा चार्ज उसका कोगुलेशन पावर ज्यादा. और अगर आपको कोगुलेशन वैल्यू देखना है तो आप देखेंगे रिवर्स, जिसका चार्ज कम उसका कोगुलेशन पावर ज्यादा. तो अब सेम क्वेश्चन जो मैंने पीछे पूछा था वो क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है. इफ देयर इज निगेटिव सीएस, निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है. अब फर्स्ट ऑप्शन विच विल बी हैव द हायर कोगुलेशन पावर, किसका कोगुलेशन पावर ज्यादा होगा. देन योर ऑप्शन विल बी AlCl3. लेकिन अगर यही पूछेगा किसका कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा होगा, देन इट विल बी, ठीक है, NaCl. कोगुलेशन वैल्यू NaCl की ज्यादा होगी, ठीक है, और कोगुलेशन पावर जो होगा वो AlCl3 का ज्यादा होगा. कोगुलेशन वैल्यू NaCl की और कोगुलेशन पावर AlCl3 का. ये हो गया हमारा कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन वैल्यू. अब हमारा आता है ये टॉपिक आपके में नहीं है, इसमें केवल बता रहा था कि लायोफिलिक कोलॉइड क्यों, ठीक है, कोगुलेट नहीं होते हैं. क्वेश्चन ये है कि व्हाई लायोफिलिक कोलॉइड्स आर नॉट कोगुलेट, ठीक है. तो इसका आंसर ये होगा सी. ये क्वेश्चन आता था, अब तो इस बार नहीं आएगा. प्रीवियस ईयर तक ये क्वेश्चन आता था कि व्हाई लायोफिलिक कोलॉइड्स आर स्टेबल, व्हाई दे आर नॉट कोगुलेट, या व्हाई दे आर मोर स्टेबल. रीजन इज हियर, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड में जो डीपी पार्टिकल होते थे उन पे चार्ज नहीं होता था. उन पे क्या होती थी, एक शीथ होती थी, एक लिक्विड की शीथ होती है, जिससे कि वो क्या होते हैं, डीएम में इंटरेक्टेड ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनका इंटरेक्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है. आपको केवल इतना लिखना होगा, रिमेंबर दिस. अब तो नहीं आएगा इस बार आपके बोर्ड में, बट में भी अगर आपके कॉम्पिटिटिव में आता है तो आपको ये लिखना है कि व्हाई लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल और नॉट अंडरगो कोगुलेशन और नॉट कोगुलेट. देन आंसर इज हियर कि बिकॉज इन लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल मींस डीपी पार्टिकल्स आर कवर्ड बाय a sheath of liquid. Now, next, this part is not in your syllabus. Remember this. Next is here. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता था वो आता था व्हाट आर प्रोटेक्टिव कोलाइड. प्रोटेक्टिव कोलाइड किसको कहते हैं, तो आंसर होता था प्रोटेक्टिव कोलाइड किसको कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड. लायोफोबिक को नहीं, लायोफिलिक कोलाइड्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड. फिर सेकेंड क्वेश्चन बनता था व्हाई लायोफिलिक कोलॉइड्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड. लायोफिलिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स क्यों कहते हैं, व्हाई लायोफिलिक कोलॉइड्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड. तो आंसर था which is written in the first line, because lyophilic colloids have unique property of protecting lyophobic colloid. लायोफिलिक कोलॉइड के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, जैसे आप कहते हैं ना बॉडीगार्ड, वैसे लायोफिलिक कोलॉइड के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है. वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज द प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलॉइड. ये लायोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फिर आया किससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम कोगुलेशन, कोगुलेट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फिर आया कि कैसे, तो वो आपको दिया है कि व्हेन लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट इज एडेड टू लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्ट, अगर किसी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट को लायोफोबिक में ऐड कर दे, ठीक है, देन जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्ट होता है वो जल्दी कोगुलेट नहीं होता है. मींस इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्ट
ठीक है, फ्रॉम कोगुलेशन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग लायोफिलिक लायोफोबिक, हमारा मिक्स हो जा रहा है। फिर से मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ कि विच कोलॉइड, ऐसे याद रखिएगा, विच कोलॉइड इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड, या ऐसे क्वेश्चन ही लिख लीजिएगा, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, नो नीड टू राइट होल स्टेटमेंट, जस्ट राइट द क्वेश्चन। Why lyophilic colloid, which colloid is called protective colloid? Answer, lyophilic colloid. The second question, why lyophilic colloids are called protective colloid? तब आपका आंसर होगा कि because lyophilic colloids have a unique property of protecting lyophobic colloid. Means when we add a small amount of lyophilic colloid in lyophobic colloid, then it prevent the coagulation of lyophobic colloid. तब ये lyophobic colloid को जमने से, coagulate होने से रोक देता है. That's why it is called protective colloid. This is not in this Sir. year's syllabus. Hello? Yes, ask your question. Yes. Sir, explain how it prevent lyophobic. अभी आपको ये क्या बताया गया है कि लायोफिलिक में एक कवर होती है, ठीक है, Yes, sir. जिसके कारण इट हैज मोर इंटरेक्शन विद डीएम, इसको चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है, इट हैज मोर इंटरेक्शन विद डीएम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट कवर, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इट हैज द कवरिंग विच इज अट्रैक्टेड बाय द डीएम, जो डीएम को अट्रैक्ट करता है या अट्रैक्ट होता है, सो इट हैज मोर इंटरेक्शन, सो बोथ आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, सो नो रिक्वायर्ड एनी चार्ज। तो सेम इज हैपन कि लायोफोबिक के ऊपर आजकल हटा दे रहे थे, इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, वो कोगुलेट हो जा रहा था। तो जब हम इसमें लायोफिलिक डालते हैं तो दैट लायोफिलिक पार्टिकल्स आर सराउंड दीज लायोफोबिक पार्टिकल, ये लायोफिलिक पार्टिकल लायोफोबिक पार्टिकल वो क्या कर लेते हैं, सराउंड कर देते हैं। तो अब अगर हम वही सारा प्रोसेस यूज करें, चाहे इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहे कुछ भी, तो ये चार्ज तक उनका वो प्रोसेस पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय लायोफिलिक, और लायोफिलिक के पास तो कोई चार्ज है नहीं। तो लायोफिलिक उसके पार्टिकल को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया कि वो अपना चार्ज रिमूव ना कर सके, और जब चार्ज रिमूव नहीं होगा तो वो कोगुलेट नहीं होगा। दैट आई एम सेइंग फॉर सर्टेन कंडीशन, ये नहीं करे कि कभी नहीं होगा, कुछ ऐसा कंडीशन, बहुत हार्श कंडीशन लगा दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपने कर दिया, लायोफिलिक वहां से हट गया, जैसे ही लायोफिलिक हटेगा फिर वो कोगुलेट हो सकता है, बट लायोफिलिक के रहते हुए वो कोगुलेट नहीं हो सकता है, बिकॉज लायोफिलिक इज कवरिंग द लायोफोबिक, लायोफोबिक को कवर कर लेता है, सो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डी-न्यूट्रल मीन्स इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्चार्जिंग और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ लायोफोबिक, ये लायोफोबिक के चार्ज को न्यूट्रलाइज होने से बचा देता है, जिससे कि वो कोगुलेट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? Sir, clear. Sir, Sivansh is here now. हाँ, शिवांश, can you repeat your question once again? I think your question was there कि why we are using formaldehyde to harden the ultra filter paper, and one more question was there, Shivansh. Shivansh, can you come online? हाँ, जैन शिवांश, Sir, my please. question was how formaldehyde harden filter paper. हाँ, पहले तो आपका ये था कि Yes, sir. your question is this कि why for how formaldehyde harden the ultra filter paper, कि why we are using formaldehyde. How? Okay, so see, both have same answer. Listen, have you read the polymer? पॉलीमर आपने पढ़ा है? No, sir. पॉलीमर को आपने देखा है? पॉलीमर में जो मैंने नोट्स भेजा था, Yes, sir. उसमें आपका था यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिर आपका था बैकेलाइट, जिसमें था फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, देखा है आपने? तो इसका आंसर ये Yes. है कि फॉर्मल्डिहाइड इज द मेन aldehyde. Formaldehyde is the main aldehyde which is forming most of the polymer.
जो कि बहुत ज्यादा पॉलीमर बनाने में यूज होता है। ये मतलब चीप भी है और बेस्ट भी है। एंड फॉर्मल्डिहाइड इज इजिली रिएक्ट टू फॉर्म द पॉलीमर। सो वहाँ जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर को जो हार्ड होने का प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज, क्योंकि आपको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कोलोडियन बताया गया था। कोलोडियन में आपको बताया गया था 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन विथ एल्कोहल एंड ईथर। तो एल्कोहल उसमें आ गया, और प्लस मतलब उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर में एल्कोहल है। और जब हम उसमें फॉर्मल्डिहाइड ऐड करते हैं, देन दिस फॉर्मल्डिहाइड हेल्प to react with alcohol and form polymer, and that polymer is hard in nature, and due to formation of that hard polymer the ultra filter paper becomes hard। मतलब फॉर्मल्डिहाइड जाके उसको हार्ड नहीं करता है, फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विथ एल्कोहल प्रेजेंट इन कोलोडियन एट अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे कोलोडियन एब्जॉर्ब हो गया था, उसमें एल्कोहल भी है, वो जाकर के उस एल्कोहल से रिएक्ट करता है और ईथर से रिएक्ट करता है, और एल्कोहल ईथर से रिएक्ट करके पॉलीमर बनाता है। मतलब उन दोनों के मिलने से पॉलीमर बनता है, दैट एल्कोहल ईथर इज कन्वर्ट इनटू पॉलीमर। नहीं तो एल्कोहल ईथर में बनाने की बजाय हम उसको वाटर में भी कोलोडियन बना सकते थे, बट कोलोडियन एल्कोहल ईथर में इसीलिए बनाया गया कि आफ्टर दैट व्हेन वी विल ऐड फॉर्मल्डिहाइड, तो दैट फॉर्मल्डिहाइड will be react with that alcohol and ether and form polymer, and due to formation of polymer the component becomes harder। वो component क्या हो जाएगा, hard हो जाएगा। Is that clear? Is Sir, that why clear, Shivansh? we don't try it simply? Why we don't use dry, मतलब without formaldehyde? Yes, sir. Why Without don't we using try it? formaldehyde is without going for second step just after first step. This you want to say, no, Shivansh? Yes, sir. Okay. So when we are going for that process, आप जानते हो फिल्टर पेपर, हमने कौन सा फिल्टर पेपर लिया था, नॉर्मल फिल्टर पेपर। और नॉर्मल फिल्टर पेपर आप जानते हो एक बार के बाद अगर दोबारा उसी को यूज करते हैं तो वो ब्रोकन हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इन कोलोडियन, दैट टाइम इट बिकम्स सॉफ्ट। अगर हम उसका उसी तरीके से यूज कर लेंगे, देन इट विल बी ब्रोकन डाउन ड्यू टू अप्लाइंग प्रेशर। जैसे आपको नीचे लिखा गया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्पीड अप करना है, फास्ट करना है, क्योंकि यह बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अगर आपको इसको प्रोसेस को फास्ट करना है तो आपको ऊपर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। सो इफ यू विल अप्लाई प्रेशर देन इट विल बी ब्रोकन डाउन, और जैसे ही ब्रोकन डाउन होगा तो सारा बीकर में आ जाएगा और सारा आपका मिक्स हो जाएगा। जैसे आपके अगर लैब में कभी हुआ होगा कि आप फिल्टर कर रहे होगे तो धीरे धीरे फिल्टर होकर अलग हो रहा होगा, लेकिन आपने थोड़ा सा उसमें स्टायरिंग कर दिया, आपने ग्लास रॉड से स्टायरिंग कर दिया, तुरंत आपका फिल्टर पेपर फट जाता है और पूरा आपका सॉल्यूशन नीचे चला आता है। सो फिल्ट्रेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, दैट्स वाई वी नीड टू मेक इट हार्डर, ताकि वो हम लंबे समय तक यूज कर सकें। एंड इफ वी रिक्वायर टू स्पीड अप द प्रोसेस देन वी अप्लाई द प्रेशर, दैट प्रेशर विल बी, ठीक है, वो प्रेशर वो सहन कर ले, उस प्रेशर से वो फट ना जाए, वो ब्रोकन ना हो जाए। इज दैट क्लियर? आप यूज कर सकते हो, बट इन दैट केस यू कांट बी अप्लाई द एक्स्ट्रा प्रेशर टू स्पीड अप द प्रोसेस। आप प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर शिवांश? शिवांश, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको हार्डन करना ही है। हार्डन करने से आपको ये रहेगा कि उस पेपर की लाइफ बढ़ जाएगी, आपको उससे ज्यादा सोल्यूशन आप फिल्टर कर पाओगे। मे भी हो सकता है कि ये जाओगे फिल्टर करेगा 300 ग्राम 400 ग्राम फिल्टर करने के बाद वो ब्रोकन हो जाए, लेकिन आफ्टर हार्डन ये आपका हो सकता है कि 1 लीटर तक फिल्टर कर दे। ब्रोकन तो वो भी हो जाएगा क्योंकि वो भी धीरे धीरे मिक्स होगा तो वो भी सॉफ्ट होता जाएगा, बट दैट विल टेक मोर टाइम, सो मोर अमाउंट कैन बी फिल्टर। And why formaldehyde is using, why not other? Because formaldehyde is the best one and the cheaper one which can be immediately react and form the polymer
which is harder in nature, so it help to harden the paper. Is that clear? Yes, Shivans? sir. Okay, thank you. Is there any other question? Okay. Second now was see the type of adsorption. हाँ, वो आपने पूछा था कि टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन वेयर इन दैट पोर्स ना, आपने पूछा था कि Yes. जो पोर्स में कोलिडियन एडजॉर्ब होता है वो किस टाइप का एडजॉर्प्शन होता है, तो दैट इज सिंपल इंफॉर्मेशन इज हियर, दैट इज केमिकल एडजॉर्प्शन. सिंपल Sir, इंफॉर्मेशन but बिकॉज that is monolayered in nature. ओके, मोनोलेयर इज तो आपको केमिकल ही ना कहा गया है, यूनिलेयर. केमिकल ही ना यूनिलेयर होता है, फिजिकल और तो Yes, मल्टी sir. मॉलिक्यूलर लेयर होता है. फिर सेकेंड थिंग आप ये जानिए कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि केमिकल इज स्पेसिफिक इन नेचर, ये बताया गया था, एंड फिजिकल इज नॉन Yes. स्पेसिफिक. तो यहाँ पे तो आप स्पेसिफिक केमिकल यूज कर रहे हो ना, कि कोलोडियन. इफ यू विल एनी अदर देन दिस प्रोसेस विल नॉट हैपन, मींस इट विल नॉट रिड्यूस. सो यू आर यूजिंग द स्पेसिफिक वन, जहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन है. जैसे आपको मैंने बताया था मार्कर, मार्कर दो आता है, सिंपल मार्कर एंड परमानेंट मार्कर. तो आपने परमानेंट यूज किया तो केमिकल, सिंपल यूज किया तो आपको लग रहा है कि सर इसमें भी तो केमिकल भरा हुआ है, इसमें भी तो इंक है, बट दैट इंक इज नॉट फॉर्मिंग द केमिकल बॉन्ड विद द सरफेस पार्टिकल. सो हियर इट इज सिंपली स्पेसिफिक इन नेचर. आप इसी से पहचान लो कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर आपको कहा गया है कि केवल कोलोडियन ही यूज करना है. आई हैव नॉट टोल्ड कि एनी लिक्विड यूज कर लीजिए. तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक है तो सीधे सीधे केमिकल. इज दैट क्लियर शिवांश? Sir, why it is not sorption? व्हाई इट इज नॉट जॉब्सन? So Sorption, job, sir. Both हाँ, physio. SORPTION means in which both adsorption and absorption both are takes place. You want to ask this one ना, कि इसको जॉब्सन क्यों नहीं Yes. करते हैं? तो सी हियर कि जॉब्सन में आपको बताया गया था कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे ये तो पोर के सरफेस पे ही ना हो रहा है. आपका फिल्टर पेपर पहले से पोरस है, और उसके पोर जहां जहां इस ये उन पोर के सरफेस पे जा करके चिपक जा रहा है. तो इट इज एक्चुअली एट हैपेंस एट द सरफेस, नॉट इन द बल्क. जो पार्टिकल उसके हैं, जो फिल्टर पेपर जिन पार्टिकल्स का बना है, फिल्टर पेपर किसी चीज का बना होगा, लाइक मान लीजिए पार्चमेंट पेपर, तो पार्चमेंट पेपर के पार्टिकल होंगे ना, ये तो उसके पोर्स हो गए. पार्टिकल्स तो यहाँ होंगे, तो वो इनके पार्टिकल के बीच में नहीं ना जा रहा है, ये तो पोर पे आकर के क्या हो रहा है, पोर के सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब हो रहा है. तो ये पोर के सरफेस पे आ रहा है, इट मींस इट इज यूजिंग द सरफेस नॉट द बल्क. पोरस होने का मतलब ये नहीं है, जैसे आप पाइप में से कोई चीज नीचे फेंकोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके बल्क में चला गया. बल्क का मतलब है कि पाइप की जो प्लास्टिक है उसके पार्टिकल के बीच में चला जाए, वो बल्क होता है. और पाइप के सरफेस पर से केवल चिपक के चला आया तो दैट इज तो सरफेस, वो तो सरफेस ही नहीं हुआ पाइप का, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो. तो सेम इज हियर कि ये पोर है, पोर के सरफेस पे चिपक रहा है तो वो तो सरफेस ही हुआ. पोर का सरफेस जिसका बना है उसके पार्टिकल के अंदर नहीं ना जा रहा है, पार्टिकल के अंदर जाएगा तब वो एब्जॉर्प्शन होगा, और जब दोनों होगा तभी उसको जॉब्सन कहेंगे. तो यहाँ तो केवल सरफेस पे हो रहा है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Okay. So now No, I'm sir. going. Okay, thank you. Now I'm going in the last part, and this is also not in your syllabus this year. The topic is emulsion, and emulsion, as I informed you in the first day of this chapter. That is not this chapter, first day of colloids. That is, I think, fifth or sixth we have started. So types of colloids. Then I informed you कि on the basis of physical state there is a name that is emulsion. Means when dp and dm both are liquid. जब dp और dm दोनों लिक्विड होता है, then that type of colloidal solution is called emulsion. उसको हम emulsion कहते हैं. ठीक है. Now next
how many types of emulsions are there? Then emulsions are of two types. First one is oil in water, OW type कहा जाता है. Here it is written OW type, and second is WO type. OW type को कहते हैं वर्ड में oil in water, means oil is DP. See, physical state of both are liquid. Oil भी liquid है, water भी liquid है. But oil is DP and water is DM. Particular substance को कहा जा रहा है कि water ही DM होगा और oil DP होगा. Then that is called OW type. और WO टाइप का मतलब हो गया वाटर इन ऑयल, मतलब वाटर इज डीपी. अब यहाँ पे डीपी वाटर हो गया एंड डीएम, ठीक है, ये ऑयल हो गया. लाइक आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, द स्काई ब्लू कलर इज वाटर एंड द येलो कलर इज ऑयल. सो वाटर में ऑयल के ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हैं. सो डीपी इज ऑयल, डीएम इज वाटर. और यही सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे तो स्काई ब्लू कलर का ड्रॉपलेट है और येलो कलर का इन्वायरमेंट है, मींस येलो कलर इज oil, so oil is DM and sky blue color is water, so that is water droplets. Means that type of emulsion in which DP is oil and DM is water, that is called OW type. And that type of emulsion in which the DP is water and DM is oil, that is called WO type. It is written, ठीक है, here. ये लिखा हुआ है, वन ऑफ द टू लिक्विड इज वाटर. दो में से कोई एक वाटर होगा, चाहे डीपी चाहे डीएम. अगर डीपी आपका वाटर होता है तो वो हो जाएगा WO टाइप, अगर डीएम आपका वाटर होता है तो OW टाइप. ठीक है, नेक्स्ट वन इमल्सन, ये बता दिया गया. नाउ इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? सो इसके लिए मैंने आपको शायद एक बार समझाया था, शायद आपको याद हो कि आप पानी ले लीजिए, पानी में आप ऑयल डालिए, दे विल नॉट मिक्स टुगेदर. बट व्हेन यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन, थोड़ा सा उसमें सोप सोल्यूशन डाल लीजिए, फिर सेक करिए, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, बट आपको ऐसा आपको मिलेगा कि वाटर के अंदर बीच बीच में ऑयल के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे. सो दैट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनदर लिक्विड द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल, है ना. मतलब ये इमल्सन जो होता है दो ऐसे लिक्विड का मिक्सचर होता है जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं. इनको मिक्स करने के लिए एक थर्ड सब्सटेंस ऐड करना होता है. देखिए यहाँ लिखा है थर्ड सब्सटेंस, दैट थर्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट. Emulsion of oil in water is unstable and sometimes they separate into layers. For stabilization of emulsion, a third substance, यही आपको आंसर लिखना है. क्वेश्चन अब तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में नहीं है. तो emulsifying agent is that third component of emulsion. emulsion में वो तीसरा component which help to mix two immiscible liquid, जो दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिलाता है एंड फॉर्म द इमल्सन, और इमल्सन बनाता है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट. ठीक है, अब ये OW टाइप के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट क्या क्या यूज होता है? प्रोटीन, गम, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप. अभी सोप सोल्यूशन हम बता रहे थे आपको. OW ऑयल इन वाटर, मैंने आपसे कहा था पानी में ऑयल डाल लीजिए. लेकिन अगर आपको WO टाइप का बनाना हो तो उसके लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे वो फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल एंड लैम्प ब्लैक. ये आपका जो था क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर इसी तरह पूछता था कि राइट सम एग्जांपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर OW टाइप ऑफ इमल्सन.
and write some example of emulsifying agent for WO type of emulsion. OW type of emulsion और WO type of emulsion के इमल्सिफाइंग एजेंट का नाम लिखिए। तो WO टाइप में केवल यही लिखना है आपको, दैट इज फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल या लैंप ब्लैक। और OW टाइप में केवल यही लिखना है प्रोटीन, और अगर नाम ना दे, OW WO ना कहे, केवल इमल्सिफाइंग एजेंट कहे, देन यू कैन राइट